again, if we take another point P2, and then again we meet these F1 and F2, these foci with that point. And Oh, if so we okay. use L1 plus L2, fine. This was the first line. Yes, ma'am. Maybe this was the first point meeting these foci. This is the second Uh, point meeting these foci. so that and P2F2. Oh, So, yes, so ma'am. this will be L3, L4. I think this it has named as L. Let this be as Ma'am, yes, point ma'am. But P2. I understood, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Rasi, did you get this? Yes, ma'am. So this is your L3 and L4. This is your L3 and L4. This all will be equal. And another P3. So this will be your L5 and L6. L5 and L6. These all will be equal. If you take another point here, if you take another point here, and again meet it here, P4, again meet these foci with this point. So again you will get here this as L7 and L8. So you will get L7 plus L8 equal with these sums. Okay, Ma'am, so they'll always be equal, right? always be will always फाइन. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसका है, प्रॉपर्टी है ये, हम जाने हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, एलिप्स की. ठीक है. अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट्स वेरी इजी. ये बस ये क्या है, इट्स जस्ट अ थ्योरी थिंग तो सारे ही है. ठीक है. तो थ्योरी थिंग है कि ये जो सन का ऑर्बिट, ये जो सन का ऑर्बिट होता है, किसी भी, सॉरी सन का ऑर्बिट नहीं, किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट होता है, वो एलिप्टिकल पाथ होता है. ठीक है. द पाथ ऑफ एनी प्लेनेट इज एन एलिप्टिकल पाथ, एंड सन situated at one of its foci. This is the first law. Sun is situated at one of the foci of any orbit of a planet. कहीं भी एक तरफ रहता है ना. हम कैसे बनाते हैं, कोई भी हम प्लेनेट बनाते हैं, ये प्लेनेट का ऑर्बिट बनाते हैं, फिर सन को बनाते हैं. कभी भी सोशल साइंस में बनाई होगी, प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम बनाते हैं ना, सोशल साइंस में ही तो बनाते हैं, राइट. तो सन को कहाँ बनाते हैं, बीच में बनाती हो क्या, सन को बीच में नहीं बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं, एट वन ऑफ इट्स फोकाई, either this or this. This, okay, yes, sir. Sun is situated at one of the foci of an orbit of a planet. Ma'am, It but is, shouldn't it be at the center? it's not it. This is the foci is the center of an ellipse, right? Ma'am, Yes, ma'am, ma'am, but in like, class shouldn't it be 5th, exactly in the middle of the circle, like literally the middle, little center No, point, no. ma'am? Because This is called the center. This is called the center, but it's not situated in the center. It is situated in the foci of the two, or either one of the foci of the two. yes, ma'am. ma'am, Yes. ma'am, in the 7th grade book of physics, ma'am, I saw like a solar system. Ma'am, the Hmm. sun was in the center. Sun was in the center? No, 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 Yes, no, ma'am. no, no, no. सन को सेंटर में कब बनाते हैं, ऐसे बनाओगा या फिर ऐसे बनाओ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे बनाओगे तो Yes, ये ma'am, it was a है, half ये picture. Yes, मरकरी, ma'am, it was half. वीनस. हाँ, हाफ होगा ना, तो फुल तो नहीं ना है. Can I use the washroom income? Okay, fine. Okay, the first law क्या हुआ? It states that the path of any planet in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse. Okay, path क्या करता है follow? Elliptical path with the sun at one of the foci. The point on the orbit of a planet nearest to the sun is called. This is also important, that the sun, the point which is nearest to the sun na, is called perihelion. Perihelion. What that point is called? What that point is called? Ma'am, perihelion. This point is situated. This point is nearest to the sun, right? This point will called as perihelion, and the point which is farthest from the sun, this point will be the farthest from the sun. So this will be called as aphelion. This will be called aphelion. Here, the motion of the planet is the slowest. And here, the motion of the planet is the fastest. Okay, means So, ma'am, here the motion is like this, and as it comes towards the near to the sun, it come like this. It revolves like this. Did you see that? How did I make this? This is your yes, ma'am. here. Here it's going like this. Speed is like this, and as it's coming near to the sun, its speed
just gets fast, and then again it gets slowed down. Again, as it come nearest to the sun, its speed again gets fastest. Again gets fast, and then again far from the Earth, it gets slowed down. Again, so this is the way how a planet revolves around the sun. पेरिहीलियन में स्पीड जो होती है वो फास्टेस्ट जाती है, मीन्स यहाँ पर हेयर जहां पे सबसे ज्यादा नजदीक, यहाँ सबसे तेज रहेगा, मीन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा प्लैनेट, एंड हेयर इट्स द at this point, means from this point, from here the speed start getting slower down. ठीक है, and then as it reach this point, at this point the speed of the planet will be the slowest, and then as it starts it start get faster, and then in this point is the fastest, and then again it start getting slower, and then so it's like this. So it's the path of the speed of the planet around the sun is like this. Okay, do you understand? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी हाँ क्या हुआ रजी? Ma'am, I was saying that does this like a perihelion and like what was the other one, ma'am? Aphelion. Aphelion. Aphelion, Yes, yes. ma'am. Ma'am, does this affect our seasons? Due to this the season, no, no, in social science what we have read, ये तो वैसे part social science का है, but it's what we have read is it's due to the जो tilt है ना अर्थ, उसकी वजह से होता है सीजन. ये जो सीजन होता है ना, उसकी वजह से होता है कि ये जो टिल्ट है थोड़ा सा अर्थ नहीं, थोड़ा सा ऐसे है ना अपने एक्सिस पे. Yes, ma'am. इट्स लाइक दिस ना, इट्स लाइक Yes, दिस. ma'am. तो ये इसके टिल्टनेस की वजह से होता है थोड़ा सा, ये जो अर्थ जो है वो टिल्ट है. दैट्स व्हाई हम लोगों को कभी हाफ पार्ट में ठंडी होता है, कभी गर्म होता है. सो इस वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि इस तरह से होना चाहिए कि जब दूर रहे सन तो ठंडी रहे. तो ऐसे होता तो ज्यादा दिन तक ठंडी रहती, कम दिन तक गर्मी रहती. बट इट्स ऑल्सो द केस कि अर्थ तो रोटेट भी कर रही है ना, राइट? Yes, ma'am. अर्थ तो रोटेट भी कर रही है, रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से दिन रात हो रहा है. बट स्टिल आई यूज टू थिंक दिस दैट दूर जब होती है तो होना चाहिए था ठंडी, और जब पास होती है तो होना चाहिए था गर्मी. बट इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स ड्यू टू द टिल्टनेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो एक बार सोशल साइंस में कंफर्म भी कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्म अबाउट दिस कि ये ठंडी और गर्मी किस वजह से होती है. हमको याद भी नहीं है ठीक से, और ये बात हमको ठीक से समझ में भी नहीं आती थी. सो दोनों बात ठीक है. Okay, ma'am. ये लेकिन अगर पता करना तो हमें बताना जरूर. Yes, ma'am. ओके, अद्विका यू केम और नॉट? Yes, ma'am. ओके, सो ये बात सुन पाई थी कि नहीं कि जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं पेरिहीलियन, एंड जो फार्देस्ट पॉइंट होता है Aphelion, yes, कहते ma'am. हैं एफिलियन. ओके, Yes, ma'am. एफिलियन में स्पीड जो होती है वो अर्थ की, सॉरी अर्थ, नॉट ओनली अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स की जो होती है वो स्पीड सबसे कम होती है, एंड पेरिहीलियन में सबसे ज्यादा होती है. बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा. Right, Ma'am, sun का. ma'am, gravitational Because- force, ma'am, ma'am, Earth का, ma'am, sun का, sorry. सन का सन का ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो पूरी जो सारा Yes, ma'am. प्लैनेट्स है वो घूम रहा है, राइट? Yes, ma'am. तो इट्स ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स Force. ऑफ द सन. ठीक है, तो यहाँ पर आते ही क्या होगा, Ma'am, fast. स्टार्ट करेगा फास्ट Ma'am, fast. तो जो स्पीड जो प्लैनेट जिस तरीके से घूमता है वो किस तरीके से घूमता है, यहाँ पर आते आते स्लो हो जाता है. एंड देन यहाँ yes, पर ma'am. आते ही ऐसे हो जाएगा. Ma'am, so ma'am, the moment it goes towards like the left of the center, closer to the sun, it becomes the fastest. Closer to the sun it becomes faster. So here it's written that here in the perihelion, in the point of perihelion, the motion of the planet is the fastest, and in the point of at the point of aphelion, the motion of the planet is the slowest. Okay, because it start getting slower down here, and then again it slows down, and then again it starts fast. Yes. Fine. Yes, तो ये जो कवर करता है डिस्टेंस, अभी ये बताएंगे सेकंड में. ठीक है, ये तो क्या हुआ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, केप्लर्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर? इट्स द लॉ ऑफ ऑर्बिट, and it states that the path of any planet in an orbit around the sun is what? Follow the shape of or ellipse. Means all the planets around the sun
follows an elliptical path, right, with the sun at one of the foci, any of the foci. तो एक फोकाई में सन रहता है, ठीक है, ये हो चुका है, ये पेरिहिलियन कहता है नियरेस्ट पॉइंट को एंड द फारदेस्ट पॉइंट एफ। फाइन, नाउ केप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। अब देखो लॉ ऑफ एरिया कैसा होता है। अब इफ वी कंसिडर 1 मंथ, ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं 1 मंथ ऑफ मोशन ऑफ अ प्लैनेट, तो 1 मंथ में इन 1 मंथ if we see here AB point, at AB point, if we see here the motion of the planet will be slower than that of the point here, right? यहाँ के मुताबिक यहाँ का मोशन क्या होगा, स्लोअर होगा, so it will cover less distance। हाँ Ma'am, the motion of perihelion and aphelion is like when we tie a stone to the thread and the thread is small. Ma'am, the stone will like revolve faster, and when but the thread is like wrong, it will it follows the it follows the path of yes, circle, ma'am. so Yes, ma'am. I'm just giving an example, ma'am. Like if the हाँ thread तो is ये long, ma'am, it just slows down. हाँ, this is what you are saying, if the thread is long, अगर तुम long thread रखोगे तो speed will be slower, and if Yes, ma'am. there is a यहाँ पर है नहीं मेरे पास thread and ईयरफोन भी नहीं है, so अगर ईयरफोन लो, अगर ईयरफोन ही ले लो, ईयरफोन का वो जो कान वाला होता है, राइट, अगर तुम उसको लंबा तार से ऐसे करोगे तो वो धीरे घूमेगा, लेकिन अगर वो तुम उसको छोटा तार यहीं तक के रखोगे तो वो जल्दी घूमेगा, राइट, जल्दी घूमेगा। तो बिकॉज यहाँ पर हाथ जो हो रहा है वो लंबे तार पे थोड़ा सा कम अपना फोर्स लगा पा रहा है, लेकिन वही उतना ही तुम तेज तेज करोगे तो क्या होगा, छोटे तार पे ज्यादा जल्दी मूवमेंट होगा, राइट। इट्स जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पर जो है लंबा तार है, तो लंबा तार है तो यहाँ पर मोशन स्लो होगा, यहाँ पर जो है छोटा तार है तो यहाँ पर मोशन जो है वो तेज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज here the motion of the planet is slower, so it will cover less distance here, right? In 1 month it will cover A to B, right? It will cover, let it cover A to B in 1 month, and again in 1 month if we consider here CD, it will cover more distance, right? It will cover more distance, more part of the circumference, if we say more part of the circumference, right? तो अगर if we consider the area of these sectors will be equal, this if this will be A1 and this will be A2, then we will write A1 is equal to A2. It will always be equal. Now here you see. This is I think 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, this is 12, right? Means this it has considered as 12 months, right? तो ये सारे क्या है, ये जो एरिया 1 है ये समझ लो हम एरिया 1 2 3 4 डालें, दिख रहा है ये एरिया, नहीं दिख रहा है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो सारे एरियाज है वो क्या रहेंगे, A1 is equal to A2 is equal, sorry, plus A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to dot is equal to A12. These all area will be equal because it's all about 1 month, right? 1 month. It's covering this much of distance in 1 month. Area should be time should be equal. Time एक ही लेना, ये ना हो कि ये 1 मंथ का यहाँ पे ले लो 2 मंथ का यहाँ पे ले लो, तब तो एरिया गड़बड़ा जाएगा, राइट, तब तो एरिया गड़बड़ा जाएगा। तो 2 मंथ का यहाँ नहीं लेना है, हर जगह 1 मंथ का लेना है। तो यहाँ पर भी 1 मंथ का ही आया, चाहे तुम 1 डे का ले लो। अब 1 डे का ले तो कुछ बहुत छोटा आएगा, राइट, बहुत छोटा आएगा, इसलिए ये 12 मंथ का ले लिया है, पूरा 1 मंथ का ले लिया, ठीक है। 1 मंथ, इट्स ऑल अबाउट all the areas are covered in 1 month, 1 month, 1 month, 1 month। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे कम, इस साइड सबसे कम एरिया कवर कर पा रहा है, राइट, यहाँ पर सबसे कम एरिया कवर कर पाए, यहाँ और यहाँ पे कम एरिया कवर कर पा रहा है, राइट, बिकॉज ये कौन सा पार्ट है, एफिलियन का पार्ट है। एफिलियन में स्लो हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है तो कम एरिया, लेकिन इक्वल कैसे हो जा रहा है, क्योंकि ये इतना लंबा भी तो जा रहा है ना, इतना लंबा भी तो जा रहा है, लंबा जा रहा है तो इक्वल नहीं हो जाएगा, राइट। यहाँ पर से ये शुरू हो रहा है, ये ऐसे इतना लंबा जा रहा है,
यहाँ पे तो इसको छोटा मिल रहा है, अगर तुम इसको कंसिडर करो तो ये तो छोटा मिल रहा है, ये वाला ये तो छोटा मिल रहा है ना, लेकिन ये एरिया ज्यादा बड़ा मिल रहा है, ये वाली चीज ज्यादा बड़ी मिल रही, तो क्या हो जा रहा है, कंपनसेट हो जा रहा है। यहाँ का एरिया यहाँ पर ज्यादा है, लंबाई में है, ये क्या है, चौड़ाई में ज्यादा है, ठीक, क्या हो जा रहा है, कंपनसेट हो जाता है। तो पूरे एरिया क्या है, सारे इक्वल हैं, A1 इज इक्वल टू पूरा लेकर के A12 तक, ठीक है, दीज ऑल एरियाज आर इक्वल, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ लिखे नहीं है क्या, सेकंड लॉ लिखा हुआ नहीं, ओके, हम लिख देंगे केपलर सेकंड लॉ क्या है, ओ वेट, हम वेस्ट हो जाए, छोड़ो, हम लिख देंगे, ठीक है, केपलर सेकंड लॉ क्या है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो अब क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ। अब केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं इसे, लॉ ऑफ पीरियड। अगर इसका हम पूरा लेंगे, पूरा ये है ना, ये तुम्हारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट and the line joining the planet and the sun sweep equal areas in equal intervals of time, right? If you take equal interval of time, if it will sweep equal areas, all the planets, if you will, all the planets, or you say all the moons of the planets, right? Because moons also revolves around this planet, right? All the moons of every planet, if you consider equal interval of time, then it's obligatory for them to sweep equal distance in that given time, right? So joining the planet, line joining the planet and the sun. Yes. Mom, is there also eclipse around every like planet? Like they are one of it. Like the planet is on one of its foci, and like the moons are like हाँ, तो मून का भी तो वही revolving around केस it. हुआ ना, मून का भी तो वही केस हुआ। Oh, मून, okay, mom. सारे मून जो हैं, सबके सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना, तो ये भी तो वही हुआ, एक फोकाई में होगा मून, मून एक फोकाई में है उसका, और जो, सॉरी मून नहीं है, प्लेनेट एक फोकाई में है, और मून जो है वो चारों तरफ चक्कर, ठीक है। Okay, mom. सो लॉ ऑफ पीरियड इज क्या है, इट स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, अब ये मीन डिस्टेंस क्या है प्लेनेट फ्रॉम द सन, is directly proportional to the square of its orbital period t। ये जो mean distance of a cube of the mean distance of a planet, mean distance मतलब ये जो सारे distance है ना, ये distance, ये distance, ये ये distance को ये बनाते हैं, ये मान लो सन है यहाँ पर, ठीक है, ये सन और ये प्लेनेट कोई रिवॉल्व करे जा रहा है, ठीक है, प्लेनेट कोई रिवॉल्व करे जा रहा है, तो ये जो प्लेनेट का जो मीन डिस्टेंस है, लाइक दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, सबको प्लस करके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, जितना भी हम कर रहे हैं। मीन क्या होता है, लाइक तुम्हारा मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स क्या होगा, मान लो 5 बार मैथ्स का तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, 5 बार तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट हुआ है, एंड देन यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ द मार्क्स, तो क्या करोगे, एक बार तुम्हें 100 में 50 मिला है, एक बार मिला है 80, एक बार मिला है 72, एक बार मिला है 90, एक बार हो गया 5 नहीं हुआ, एक बार मिला है 83, ठीक है, Mom, यू विल डिवाइडेड बाय 5 टू, हाँ, टू, mom, mean is equals to sum of all observations upon yes, total number of yes, observations. yes, sum of all observations upon the total number of observations। तो जितनी तुम ऑब्जर्वेशन लोगे यहाँ पर, किसके, डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ये जो मीन निकालोगे ना, ये जो मीन निकालोगे वही है मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसी को कह रहा है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे, इफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज r, तो हम इसका अगर क्यूब करेंगे, क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। कितना टाइम ये पूरा रिवॉल्व करने में, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा रहा है, ये सारे प्लैनेट की बात हो रही है, ये कितना टाइम लगा रहा है, हाउ मच टाइम इट्स टेकिंग टू टेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इफ आई स्क्वायर दैट टाइम, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये रिलेशन होता है, r cube is directly proportional to t square, ठीक है, and if we have to take out this, remove this proportionality sign, to in order to remove this proportionality sign, we have to introduce a what, k Constant. constant, which we can write it like
k इज इक्वल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। तो ये याद रहेगा आर क्यूब टी स्क्वायर। कैसे याद रहेगा कि आर का ही हमें क्यूब लेना है, टी का भी, टी का ही हमें स्क्वायर करना। कैसे याद करोगे? याद रहेगा आर का ही हमें क्यूब लेना है, आर क्यूब। ये पता है ना, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब Yes, ma'am. है ना, रूबिक्स क्यूब तो सबको पता है ना, खेलते हैं। क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हुआ करते थे ना, आर क्यूब करेंगे कि टी क्यूब करेंगे। हमको लगता था ऐसा टी क्यूब करना है, तो इसीलिए तुम लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। तो इससे आप कर लो रूबिक्स क्यूब। अब रूबिक्स एक तो क्यूब हो गया, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर ही होना है, तो टी स्क्वायर होगा, ठीक है। Yes. इससे याद कर लो रूबिक्स क्यूब। सभी लोग खेलते हैं रूबिक्स क्यूब। अरे अद्विका, यू देयर और नॉट? इज No, ma'am. नॉट, इज लेफ्ट। ओके, तो ठीक है, समझ आया कि ये क्या है, थर्ड लॉ। Yes, ma'am. ओके, तो आज तीन ही लॉ, आज तीन लॉ तो डिस्कस होना ही है। और एक चीज और, ये नहीं बता पाए थे, केप्लर्स एक ये थ्योरी नहीं दे पाए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये प्लैनेटरी मोशन का कॉज क्या है, क्यों प्लैनेट जो है वो चक्कर लगाता है, वो क्यों एफिलियन में धीरे करता है, क्यों पेरिहिलियन में तेज करता है, ये केप्लर नहीं बता पाए, राइट। ये केप्लर नहीं बता पाए थे। तो ये बताया कौन था? कौन बताया था? ये न्यूटन बताए थे। न्यूटन बताए थे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो कि मदद करता है किसी भी प्लेनेट को रिवॉल्व करने में अराउंड द सन। एंड तेज होना है कि धीरे होना है, वो डिपेंड करता है किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पर। जब तेज लगने लगेगा पास आते ही, तो वो तेज हो जाएगा, और धीरे लगना रहेगा फीलिंग में, तो धीरे लग, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है। और फिर न्यूटन जो है वो केप्लर का थर्ड लॉ यूज किए क्या करने में? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने, ठीक है। तो ये क्या किए हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पहले फॉर्मूला लिखे हैं, उसके बाद जाकर के क्या किए हैं, यहाँ पर चीजें रखे हैं, वैल्यूज रखे हैं, और वो लेकर के आए हैं कि हाँ, लेकर के आए हैं कि ये F इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर KM/r। ठीक है, ये रिलेशन लेकर कौन लाया है? ये न्यूटन लाया, Newton. ठीक है। तो तभी से ना पता चला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही ना हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square Yes, ma'am. and directly proportional to the masses of the two bodies, right? Yes, ma'am. तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, तो आज नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग कल, और मतलब नेक्स्ट क्लास। और एक बार और ये रिवीजन होगा, केप्लर्स लॉ। फाइन, we can close this class for today and then we'll continue the next. Okay, Okay, ma'am. bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.